in listen-only mode. Hi, good afternoon, everyone. So this is our second session. So this is kind of second part of our previous webinar where I covered one of the account, or maybe you can say uh, the basic holding and how the portfolio did in last 8 years, eight and a half years. And today is the second part where we will cover, say, like everyone knows the agenda in short. So there are like two another stories where uh, there are like couple of accounts, my family accounts, where uh, we uh, we invested more funds instead of staying in cash, because what happened is like there were many fund managers who were going on cash since June 2024, and then there was more highlight by a few more fund managers during December 2024 and January 2025, who saw that Trump is like unpredictable. So some part of their portfolio was in cash. uh, like if we dig those fund managers, though they didn't deployed the funds of their clients. Okay, so again, एक फंड मैनेजर के एंगल से और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के एंगल से काफी डिफरेंस होता है, बिकॉज फंड मैनेजर हैज लाइक टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ दे आर मैनेजिंग, एंड अपने केस में मोस्टली सिप से हम थोड़े जो बम्प्स होते हैं, लाइक मार्केट डिस्काउंट्स, वो हम कैच कर पाते हैं. ओके, so I we will cover those two aspects, and there is one more family portfolio. So I'm like I'm not professionally managing, but this portfolio was deployed in Feb 2020. So it is a family portfolio only, but the person who started investing is like kind of like, you can say, a retired guy, and retired relative, in fact. And he was never in stock market. Okay, so since like he saw the market since 1990s, but never got chance. But maybe in a post retirement 2015, he deployed some funds in mutual funds, and some part of him, like, it is again a family portfolio. I will not name his name. uh, he gave me the portfolio when it was peak of Feb 2020, before COVID. Okay, so there, when the market made a peak, because Sitaraman gave a good budget. It was just a month before the pre-COVID. So let's discuss that portfolio and the psychology of the investor who is new in stock market, and every time he deployed the funds was the peak in last 5 years. Okay, so we will see performance of such investors as well. Okay, and maybe we can have more examples if required. Let me check who joined newly. I am just unmuting everyone. Okay, I hope everyone knows me. No one is new, so I have just started my video so that किसी ने पहली बार देखा होगा तो लाइव देख ले एक बारी. So most of us are old folks only. कोई नया है इधर, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? एनीवन न्यू पर्सन? ओके. ओके, लेट्स स्टार्ट.
So as we know, like again, some quick summary. Ke last 10 years were not so good in terms of Indian stock market. So it started with the Greece crisis, then Brexit in 16. I hope everyone can see my screen. Okay. Then demonetization in November 16, and like we covered this part in last video, but quickly we will have like we will try to spend couple of minutes. Then there GST change impact in FY 18, then NBFC crisis 19 May, then there was a COVID phase 1, phase 2, India's economic slowdown during the same phase, then Ukraine war, then markets bubbles. So market was so peaked. There were many stocks who went like euphoric, who have performed like euphoric rally. सो लोगों ने उसको मार्केट का बबल ऑफ बबल भी नाम दिया है, यानी बबल तो हो गया है तो उसका भी बबल बन रहा है काइंड ऑफ. एंड देन ट्रम्प टेरिफ वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग अर्ली दिस ईयर. देन इंडिया स्ट्राइक्स पाक ड्यू टू सम कंसर्न्स. एंड देन फिर से अभी टेरिफ 50% टेरिफ का इशू चल रहा है. ओके. And this is how, like, those who are small mid cap investors, so this is graph of uh, small cap index where you can see रेड पोर्शन काफी ज्यादा है और ग्रीन तो खाली ये जो फेंड ग्रीन दिख रहे हैं दैट आर द डिस्काउंट के बाद वाला रैली, कितना लंबा रैली हुआ है. ओके. सो कैन वी टाइम दिस? सो it's little hard to time it. Okay, so every time we can't uh, encash our investments जब भी मार्केट निगेटिवली या फिर निगेटिव ट्रेंड, दैट इज लाइक अगर हम स्क्रीनर खोलते हैं तो जस्ट एग्जांपल निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स अगर हम खोलते हैं तो हम ये 50 डीएमए 200 डीएमए लगा के हम टाइम नहीं कर पाएंगे कि बहुत से क्रॉस हुआ है तो अभी बुल रन शुरू होने वाला है, या निगेटिव साइड अगर होती है लाइक व्हेन द शॉर्ट टर्म डीएमए क्रॉसेस द लॉन्ग टर्म इन डाउन साइड, देन थोड़ा सा निगेटिविटी आता है. सो वी कांट टाइम हियर. ओके. सो दिस इज एक्चुअली द कंसोलिडेटेड units or points of small and mid cap, you can say. But individual stocks can do good in bad phase as well. Okay, so we are more or less into bottom up approach. Okay, we are not worried much about the economy because things are going good as of now. Okay, so बुरे दिन भी थे, ये खाली कोविड का एक क्राइसिस था जो बहुत मेजर था. ओके. एंड देन दिस स्मॉल मिड कैप नेवर लुक बैक. दिस ईयर वाज नॉट सो गुड. अभी भी हम जो सितंबर लास्ट वीक ऑफ जो पीक बनाया था उसके अभी भी हम कुछ परसेंट 5-10%, 8-10%, 12% स्मॉल और मिड कैप डाउन है, और निफ्टी भी लगभग 6-7 5-6% डाउन है अप्रोक्सीमेटली, ये जो पीक बनाया था वहां से लास्ट ईयर का जो पीक है. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द पोर्टफोलियो वेयर वी डिप्लॉयड फ्रेश फंड. ओके. सो जैसे हमें पता है कि एक साल का ग्राफ जब निकालेंगे. ओके. सो मोस्टली लाइक कुछ फेमस फंड मैनेजर, मैं नाम नहीं लूंगा अगेन, जून 2024 में वो कैश में बैठे थे. उसके बाद भी मार्केट ने रैली किया. ओके. एंड देन इट वाज कॉल्ड एज बबल ऑफ बबल, जो मैंने मेंशन किया है. एंड देयर वाज अ डाउन साइड. ओके. So the perspective here is like we have we everyone are based of like everyone is salaried person over here, and the only superpower, as we always tell ki our superpower is Indian stock market. Sorry, our superpower is your salaries. Okay, so we after 35-40 many of us are इन पीक ऑफ आवर करियर. सो अभी कुछ लोग शायद 45 प्लस होंगे ये सेशन में ज्वाइन किए हैं. सो
more or less the average person in this session or maybe in our group are like ranging between 35 to 40 का एज है एवरेज एज हमारे ग्रुप्स की बोल सकते हैं तो वी हैव इनफ salary and savings so that we can sip whenever every month actually we most of us don't wait for the bottoms but हाँ bottom में अगर है कुछ अच्छा कैश पड़ा हुआ तो we can deploy it slowly okay so यहाँ पे हमने खाली एक ही दिखाया है कि अभी मान लो 11 महीने हो गए हैं मार्केट वन साइडेड ही डाउन साइड है मोस्टली थोड़ा सा बीच में ज़्यादा गिरा था मार्च में and like in this account we sip so this is a live account so like I have not took the consolidated account okay so ये एक fresh account है जहाँ पे fresh मुझे हमारे फैमिली मेंबर्स के सिप्स दिख रहे हैं ओके सो जैसे थोड़ा बहुत कैश होगा एंड वी डिप्लॉयड सो अक्टूबर में अभी ये स्टेटमेंट्स ना मैंने सीधा जीरोदा के स्टेटमेंट से निकाले सो डेट मर्ज कर सकते हैं बट आई हैव नॉट मर्ज इट जस्ट टू शो के है था बड़ा कैश तो डिप्लॉय किया ओके एंड फास्ट फॉरवर्ड सितंबर में लास्ट सिप इतना गया है तो अगर हम देखेंगे कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट इस पर्टिकुलर अकाउंट में से थी 26 लाख एंड पोर्टफोलियो 28 प्लस लाख का है स्मॉल और मिड कैप ने कैसा परफॉर्म किया ये पीरियड में तो ये 11 महीने में स्मॉल और मिड कैप जो है वो यू कैन सी हियर के लगभग 6% माइनस है स्मॉल कैप पीक से जो पीक यानी जो ये तारीख का जो पीक था एक्चुअली ये और से 5% टूटा हुआ है एक्चुअली जो सितंबर लास्ट वीक का पीक था सेम विद द मिड कैप सो कंसिडरिंग दिस डेट्स these are the peak in last 11 months and if you see सिप जो है वो रेगुलर है ये अकाउंट में ऑलमोस्ट कभी कभी ज़्यादा पैसा गया है जब मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ लगा है बाकी टाइम पे लाइक रेगुलर सिप्स जो आप देख सकते हो लाइक इनिशियली 10 लाख देन 2 1 1 दिसंबर में नवंबर में थोड़ा मार्केट ज़्यादा गिरा था देन फेब में मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिरा था फेब एंड जैन में भी थोड़े डिस्काउंट्स थे एंड वी कैन सी दैट एब्सोल्यूट रिटर्न्स आर लाइक 9% एंड XIRR तो हमें XIRR देखना चाहिए एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ तो यू कैन सी अभी ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है यहाँ पे इसके रिटर्न्स और यहाँ पे डिफरेंट क्यों है यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न है करंट पॉइंट से और यहाँ पे मैंने कैगर में रिटर्न निकाले सो अभी एक महीना कंप्लीट होने का है एक साल कंप्लीट होने का है एक कुछ 2-3 हफ्ते बाकी है ये टाइम ड्यूरेशन के लिए तो 0.9 ईयर्स हो गए अप्रोक्सीमेटली तो वो हिसाब से मैंने कैगर कैलकुलेट किया है मिड और स्मॉल कैप का एंड सिमिलरली फॉर निफ्टी सो निफ्टी ये दिन से एक्चुअली निफ्टी 5% डाउन है सिंस सितंबर 26 2024 26 सितंबर 2024 से बट ये पॉइंट ऑफ टाइम से निफ्टी एक 1.5% डाउन है खाली एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर के as we are doing cherry picks so this portfolio due to this sip okay performed 13 प्लस परसेंट का XIRR ओके तो इसमें एक्चुअली एक आइसोलेशन में अगर हम देखते हैं तो 13% दिखता है अगर मान लो ये पोर्टफोलियो का वर्थ से सिमिलर लाइक 30-40 लाख अगर होगा जो दूसरे अकाउंट्स में अगर फंड है और अगर 30-40 लाख होगा एंड तो इन शॉर्ट क्या हो गया है हमारा जो अगर वो पोर्टफोलियो में से 4-5% निगेटिव है एंड प्लस ये फ्रेश पैसा अगर हम सिप करते हैं आई होप यू गाइज आर गेटिंग सो दिस इज अ फैमिली मेंबर हु हैव 2 अकाउंट्स एक अकाउंट में ऑलरेडी पोर्टफोलियो है और ये दूसरे अकाउंट में उसने फ्रेश पैसा पंप किया है तो कंसोलिडेटेड अगर हम उनका परफॉर्मेंस निकालते हैं जो अभी दूसरे पोर्टफोलियो में से -4% या 3% होगा और ये रिटर्न्स को अगर हम मर्ज करते हैं तो एक एब्सोल्यूट रिटर्न्स अगर देखेंगे तो 5+% के रिटर्न हमें दिखेंगे दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज देयर इज no option but to sip during such situation okay so market will not crash वो तो सीधी सीधी बात थी considering our economy and there is no need to I will say fear during such small downside of market okay
इसमें बेनिफिट क्या होता है, ये सिप से बेनिफिट क्या होता है? इफ यू नो, देर वेर मेनी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स वेर डाउन बाय 30-40%। ओके, सो देर आर ह्यूज चांसेस। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग, अभी मान लो अभी ये स्टॉक्स, अभी इन इनके स्टॉक में पोर्टफोलियो में भी अप्रॉक्स 20 स्टॉक्स होंगे। ओके, ये अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं खाली। And you can see here, most of the funds are deployed in mid and small cap. Mid cap ka, like we discussed about, again, like whatever stocks we will be discussing here, those are not tips. Okay, so here one of the mid cap is like AB Capital. I would say, I believe that is the one जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करके हमारा लाइक 5% अलोकेशन करके, 5 या 6% का अलोकेशन करके, वो अकेले स्टॉक ने बहुत ही लाइक पोर्टफोलियो लेवल पे 2 से 3% का रिटर्न दिया है। ओके, एंड देयर वेर सम स्टॉक्स लाइक, ये इंजीनियरिंग वाला एक स्टॉक है जो 125% ऊपर गया है अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द बॉटम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब निफ्टी या फिर यू कैन से स्मॉल कैप इंडेक्स, अभी यहाँ पे देखो ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो मार्च अप्रैल में हमें बहुत सारे स्टॉक्स ना 50% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। तो हमें सिप का यूज उसी के लिए करना है भाई। ओके, सिप क्यों है? सिप अपने ओल्ड स्टॉक को एवरेज करने के लिए है, और अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है डिस्काउंट वाली, तो उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो हियर वन ऑफ द स्टॉक आई वुड से कि जो 22% दिख रहा है, सो एक ही स्टॉक में 22% एलोकेशन, क्योंकि इसमें आई बिलीव एक ही स्टॉक जो शायद HLE इंजीनियरिंग होगा, वो डबल से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो वो अकेले स्टॉक ने पोर्टफोलियो वाइज 5 to 6% का रिटर्न दिया है। यानी ये जो हम देख रहे हैं XR के रिटर्न्स, ये पोर्टफोलियो के। सो देर आर पॉसिबिलिटी कि 2 या 3 स्टॉक ही ना आपको पूरे कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो को हेज कर दे। अब मेरे बोलने का ये मतलब है कि हमेशा जब बॉटम्स आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ बॉटम्स आते हैं, जब जब हम ये अमाउंट पे मत जाओ। ओके, कंसिडर दिस एज अ नॉट 5 लाख, मे बी 50,000 पकड़ो, किसी की कैपेसिटी 50,000 है। अभी शायद ये फैमिली मेंबर का सेविंग थोड़ा ज़्यादा था, सो ही डिप्लॉयड एट दिस पीरियड। ऐसा समझो कि हम नॉर्मल सिप कर रहे हैं, तो consider this as a, like, divide this amount by say 10 like by 50%, or maybe more less than that. Okay, so जैसे अपनी आपकी सिप की कैपेसिटी है, बस वो सिप की कैपेसिटी मान लो 50,000 है, 75,000 है, 25,000 है, वही कंसिडर करके पकड़ो। ओके, एंड ओनली 15% ओनली 15% ऑफ योर एडिशनल सिप will not only beat this not only not it will not only beat these indexes or this nifty, ओके, इन आइसोलेटेड वे, बट आप आपके पूरे पोर्टफोलियो, मान लो आपके 2-3 अकाउंट्स है, ओके, तो वो कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करता है, सो दैट आपके पूरे नेटवर्थ का जो कैगर है वो 1-2% से ना इम्प्रूव होता है हर साल। सो दीज आर द बेसिक्स। ओके, सो वी आर नॉट अप्लाइंग एनी स्ट्रेटेजीज, बट ऐसे मार्केट सिचुएशन में ऑब्वियसली आपको काफी अच्छी आइडियाज भी मिलेगी, जहाँ पे आप आपके स्टॉक्स में भी दुगने हो जाएंगे। अभी इन लास्ट ओनली 6 months, few stocks are like 50%, 60% to 125% के रिटर्न दिए हैं। ओके, एंड द प्रॉब्लम इज लाइक देर वेर द फेज वॉज नॉट सो गुड। ओके, द फेज वॉज एवरीवन वे वेटिंग फॉर ट्रम्प आएगा, ट्रम्प अच्छा कुछ बात करेगा टेरिफ के रिलेटेड, इंडिया की सिचुएशन अच्छी सुधर जाएंगी, वो एक्सपेक्टेशन से लोग रुकते हैं। बट एक्चुअली अगर हम सही में थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हैं मार्केट की, ओके, सो देर आर लाइक चांसेस वी कैन ग्रैब, बट अगर आप खाली वो ट्रम्प के कमेंट्री के लिए राह देखोगे, तो वी विल मिस सच अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो ये केस था। एक दूसरा केस है से इट्स अभी ये जो अकाउंट जो डिप्लॉय हुआ था, तो ये मैंने जानबूझ के क्यों लिया है, ये अकाउंट में ना एक नया डीमैट है। ओके, या एक फ्रेश डीमैट है, जहाँ पे ये सिप की गई थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से शो हियर इज लाइक इट इज अ
इट इज शोइंग हाउ यहाँ पे लाइक कंपैरिजन ही नहीं है ये इंडेक्सेस से अभी। इवन आई डोंट नो गोल्ड ने कितना दिया है 6 महीने में, ओके, बट इफ यू चेक दिस इंडेक्सेस ना, देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दिस इंडेक्सेस एंड दिस पोर्टफोलियो, ओके। सो ये पोर्टफोलियो डिप्लॉय किया था अक्टूबर में। नाउ वी कैन सी सम अदर पोर्टफोलियो एंड दिस इज अ रियल पोर्टफोलियो, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो हियर के जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। सो दीज आर लाइक 10 लाख डिप्लॉयड, तो यहाँ पे भी देख सकते हो 10 लाख डिप्लॉयड है। देन मार्केट यू कैन सी हियर दिस डार्क ब्लू डॉट्स आर द न्यू सिप्स। यू कैन सी मार्केट कभी फ्लैटिश था, अभी यहाँ पे मार्केट रैली किया है। सो मार्केट विल नॉट वेट फॉर योर कंफर्मेशन के बॉस टेरिफ के इश्यू सॉल्व होने वाला है। तो यू कैन सी हियर दिस इज वन साइडेड रैली सिंस मार्च और अप्रैल, okay, and then again there are some glitches, then one more last sip which was I guess 70,000 का था, and now this portfolio is making new high, okay। सिमिलरली ये दूसरा पोर्टफोलियो जो जनवरी में डिप्लॉय किया था, अभी मैंने ना अलग अलग फेज जो थे हमारे स्टॉक मार्केट के, जैसे अक्टूबर का एक फेज था, देन जनवरी से एक अलग फेज था, अप्रैल से एक अलग फेज था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कि अगर आप वो पर्टिकुलर पॉइंट में भी आते हैं तो लाइक यू आर अगेन यू कांट टाइम, ओके। सो मैं ये टाइम नहीं कर सकता हूँ कि बॉस ये ग्राफ दिखा रहा है मैं नीचे जाऊंगा। अभी यहाँ पे देखो, अगर ये गोल्डन क्रॉस के बाद अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो तब तक मेरा ये बॉटम का अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा ना। So again, that's why we don't look for technical. Okay, so you can see the other account which was deployed, which has deployed the fresh cash since Jan. Okay, अब अभी ऐसा हम ये नहीं बोलेंगे यार ये पोर्टफोलियो ने अच्छा किया, ये पोर्टफोलियो ने थोड़ा बुरा किया है, ये पोर्टफोलियो ने थोड़ा अच्छा किया है, ओके, ऐसा नहीं है। सो इफ वी अगेन कंसिडर इट एज अ कंसोलिडेटेड वे, ओके, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जनवरी से निफ्टी 5% ऊपर है। सो अगेन दीज आर द स्टार्ट एंड एंड लाइक स्टार्ट एंड करंट डेट्स मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे ओके जनवरी से डिप्लॉयमेंट चालू है और ये करंट डेट है। एंड यू कैन सी हियर के एब्सोल्यूट वे में ये 9 महीने में ही ये पोर्टफोलियो ने 12% का रिटर्न दिया है एंड एक्सआरआर बेसिस पे 26% का रिटर्न दिया है। अगेन नंबर ऑफ ईयर्स आर लाइक से 9 मंथ्स, सो ये 0.72 इसलिए बता रहा है। एंड एनुअली अगर कैगर कंसिडर करे स्मॉल मिड कैप का, तो स्मॉल कैप अभी भी -4% पे है। एंड यू कैन सी देर इज अगेन नो कंपैरिजन बिटवीन दिस पोर्टफोलियो एंड दिस निफ्टी कैगर। तो बोलने के लिए अपन बोलते हैं कि लाइक 12% का टारगेट रखेंगे, बट अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिल जाती है तो रिटर्न्स थोड़े बेहतर रह सकते हैं। अगेन यू कैन सी हियर ये अकाउंट में हम देख सकते हैं कि लाइक बीच बीच में पैसा आया है तो इट रैलिड। एंड अगेन नाउ कंसोलिडेटेड वे में इफ आई कंसिडर द कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो, अगेन दिस रिटर्न्स एडेड couple of percent इन द नेटवर्थ। भले ही ये अकाउंट में शायद 26% का कैगर दिखाई देगा, बट अगर मैं पूरा पोर्टफोलियो देखूंगा तो वहां पे 1-2% का अल्फा जनरेट हुआ है if we consider other indexes, okay। And again here like there are say approximately 25 stocks in this portfolio. These stocks can be unique or can't be unique if we consider few more accounts of this family member. These are the locations. Again, you can see our nature is नॉट इनटू लार्ज कैप, सो मिड और स्मॉल कैप में जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिली वहां पे हमने वो ग्रैब किया। ओके, आई विल स्किप दिस। ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज वन ऑफ माय क्लोज फैमिली मेंबर। आई होप एवरीवन इज हियर। एनी क्वेरीज टिल नाउ गाइस? प्लीज लेट अस नो। टिल नाउ कोई क्वेरी के स्टॉक कैसे सिलेक्ट किए हैं या एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टू यूज केसेस?
Are you with me? Am I audible? यस यस जो आगे। कोई भी क्वेरी, ये स्टॉक, यही स्टॉक क्यों लिया, इसी टाइम पे स्टॉक क्यों लिया, कोई भी क्वेरी पूछो, कोई कोई लाइक वी कैन डिस्कस ओवर हियर। और एनी सेक्टर जिसने अच्छा किया है लास्ट 8-9 महीने में। तो स्टॉक लेने से पहले आप फंडामेंटली मतलब क्या कर देखते हो उस बिजनेस में? ओके, देखो यार, ये ना कोई ये जो स्टॉक्स जो है, हम जो कुछ भी बाय करते हैं डीप में, ठीक है, एक तो जब बैड फेज होता है ना, एक सीधा सवाल खुद से यही करना चाहिए कि ये कंपनी मेरे को पता है क्या। इफ यू आर ट्रैकिंग दैट कंपनी सिंस से 2 3 4 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो उतना ही ना आपको कन्विक्शन होता है, ठीक है। आई विल शो यू 2 एग्जाम्पल्स, लाइक लाइक उसमें मैं एक जस्ट एक स्टॉक शेयर करता हूँ। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, ओके। सो कभी कभी लगता है ना कि लाइक यार बड़े इन्वेस्टर जो ले रहे हैं, हम उनको ही फॉलो करना चाहिए। ऐसा लगता है हमें बहुत बार। हम ग्रुप्स में सुनते हैं कि यार ये स्टॉक ना किसी बड़े इन्वेस्टर ने ले लिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये स्टोरीज बीच बीच में चलती है। हजारों स्टॉक्स में स्टोरी चलती है, जैसे एफ जी फिंसर किसी बड़े इन्वेस्टर्स ने ले लिया, ओके। एंड हम क्या बोलते हैं यार, ये सिचुएशन कब की बोल रहा हूँ मैं, जब मार्केट अच्छा है तो ठीक है, सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, बट बुरा है तो हमें ना हमारे अपने कॉल लेने चाहिए। जस्ट एग्जांपल, जैसे एक अभी बीच में ये स्टॉक किसी बड़े इन्वेस्टर ने उठाया था, एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं ना कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, कोई ना कोई ये स्टॉक्स को पंप करने की कोशिश कर रहा है, ओके। सो मोर और लेस इस टाइम पे कोई बड़े इन्वेस्टर आए थे ये स्टॉक्स में, ओके। तो मेरा लाइक एज ए इन्वेस्टर, व्हाट शैल आई थिंक, ओके। सो क्या मैं ये कंपनी, मुझे पता है मेरे को, जब से ये टेक ओवर किया है गुप्ता सन्स ने, यानी एक संजय गुप्ता के बेटों ने, या उनके ग्रुप ऑफ कंपनी ने, ये एक एनबीएफसी थी, इसको टेक ओवर किया था 1.5 साल पहले। इफ यू सी द रैली वाज लाइक एनीथिंग, ओके। सो ये रैली ना वो गुप्तास को भी नहीं मिली एक्चुअली, ओके। तो उनके शेयर ट्रांसफर हुए यहाँ पे कहीं पे, तो भी तो बीच में ऑपरेटर्स आते हैं जाते हैं, पैसा ना कोई नहीं बनाता है। ये जो दिख रहा है ना 2 रुपए का स्टॉक, आप बोलोगे कि 300 हो गया, लाइक 100 गुना हो गया, तो ये रैली ना किसी को नहीं मिलती। सब ना ये यहाँ पे ये टाइम पे आते हैं जो रियल में पैसा बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्टोरी ना अगर मान लो 5-10 साल की है, ओके, तो ये सिंस लास्ट 2 3 ईयर्स आई एम ट्रैकिंग दिस स्टॉक्स, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग इट, सो यू कैन जस्ट डिग द बिजनेस। तो यहाँ पे एक ही सवाल था कि वैल्यूएशंस, जब हम कोई कंपनी लेते हैं, तो मैं लाइक से 2 ढाई साल से ट्रैक कर रहा हूँ ये स्टॉक को। तो जब ये सिचुएशन थी मार्च की, ओके, सो इफ आई हैव टू रेज फ्रेश फंड्स एंड आई हैव टू डिप्लॉय, सो यार ठीक है, ये तो एक स्टॉक है जहाँ पे अभी ये एनबीएफसी का क्राइटेरिया लगाओगे आप, इसका बुक वैल्यू देखोगे, इसका बुक वैल्यू लोन वैल्यू देखोगे, कितना रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट्स कितना बना रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। बट जब मार्केट सिचुएशन खराब होता है, यानी मार्केट सिचुएशन खराब था, सो दिस इज द अनदर स्टॉक आई एम ट्रैकिंग सिंस इट्स लिस्टिंग प्री कोविड लेवल्स। ये बहुत बार डिस्कस भी किया है स्टॉक को, ओके। सो ये स्टॉक डॉट, ये स्टॉक ने कितना बॉटम बनाया था, 150, ओके। सो हम ना बॉटम पे नहीं कैच कर पाएंगे ऐसे स्टॉक्स को, ओके। सो मे बी आई स्टार्टेड बाइंग सिंस 200 180 170 लेवल्स, समथिंग लाइक दैट। बट एक टाइम आता है जब मुझे डिसाइड करना पड़ता है, एज ए इन्वेस्टर हमें डिसाइड करना पड़ता है यार, मैं इसमें डालूं जहाँ पे तो हीरो लोग आए हुए हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर, या इसमें डालूं। तो यहाँ पे फिर भाई एक ही देखता हूँ मैं, वैल्यूएशंस, किसके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है। अगेन वैल्यूएशन में अपन पी लाइक सेकेंडरी है। ऐसा हो सकता है कंपनी प्रॉफिट दिखा नहीं रही है ग्रोथ के लिए,
पैसा री इन्वेस्ट कर रही है तो प्रॉफिट कभी कभी कम दिखता है। बट जब वैल्यूएशन की बात आती है तो दिस ऐसा देखो, अभी मार्केट कैप भी हम बोलते हैं कि माए बाप है, अभी इसका मार्केट कैप भी उस टाइम पे मार्च के बॉटम पे इसका भी मार्केट कैप लगभग 1800 1700 हजार करोड़ था, बल्कि आदित्य बिरला कैपिटल का से लगभग 35,000 करोड़ था मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट वैल्यूएशन जब देखता हूँ, जैसे इनके मल्टीपल बिजनेसेस है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, लोग क्रिटिक्स भी ऐड करते हैं कि ये तो होल्डिंग कंपनी है। बट अगेन इफ वी सी यार, मुझे ये जो चीज़ है जिसमें 3 बिजनेसेस है, तो हर बिजनेस का वर्थ ना 10-15 हजार करोड़ का है। तो 4 बिजनेस है, 5 बिजनेस है, 1 लाख करोड़ के जो वर्थ है ये कंपनी की। अभी किसने सवाल पूछा था, सॉरी रोहित। तो आपको ना ये सारे बिजनेसेस को ना स्प्लिट करके ना हर एक की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। सारे बिजनेस को स्प्लिट करके वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी, तब आपकी कुछ एक वैल्यू एक नंबर आएगा। एंड देन यू नीड टू चेक कि वो नंबर के हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना रहना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई आई टुक द कॉल। मैं बोलता हूँ यार, स्मॉल स्मॉल कैप में या माइक्रो कैप में मैं रहता हूँ, बट कभी कभी ये ऐसे कॉल्स भी ना काम में आते हैं। सो इन शॉर्ट, लाइक आई होल्ड मोर देन से 50 स्टॉक्स। तो कभी कभी कॉल लेना पड़ता है कि ऐसा नहीं है हमेशा हमें स्मॉल और मिड कैप में ही जाना पड़ता है। तो आई थॉट दिस कैन बी द बेस्ट बेट। अगेन मुझे नहीं पता था ये इतने फास्ट ऊपर आएगा स्टॉक, राइट। तो यू कैन सी हियर 150 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो मे बी मुझे 60 70 80% के लगभग रिटर्न्स मिला है। ओके, जैसे मैंने कहा कि मैं अलग अकाउंट में लेता हूँ, तो मुझे एक चांस भी होता है कि यार मैं खाली कौन सा पार्ट बेचूं, वो उसका भी मैं कॉल ले सकता हूँ। तो ये स्टॉक मैं 8 साल 6 7 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, इसीलिए शायद मैं इसमें मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट भी किया हूँ, थोड़ा ट्रिम डाउन भी किया हूँ। और अभी कैसा है, इतना बिजनेस इतना समझ में आता है, तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे मान लो जस्ट एग्जांपल, मैं जब कोविड के पहले जस्ट 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर पाता था, अभी मेरी कैपेसिटी से अगर वो 2% है, अगर मैं मेरा 1 करोड़ का वर्थ है, अगर 1-2% की वो वर्थ उस टाइम पे थी, अगर मान लो आज मेरी वर्थ डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, तो मेरा उतना कन्विक्शन बढ़ जाता है कि यार इसमें फिर मैं अभी 1 लाख नहीं डालता। अभी मेरा वर्थ मान लो 3 लाख 3 करोड़ हो गया है सपोज, तो मैं 3 गुना वर्थ इसमें ऐड कर सकता हूँ। आई होप आई एम गेटिंग द पॉइंट। सो द एक्सपीरियंस will only tell you and your portfolio value will only tell you कि मैं इसमें कितना डालूं। ओके, अब इसमें डालना किधर से है यार, अभी सैलरी लिमिटेड है सबकी, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में से ही कुछ ना कुछ स्टॉक्स बेच के वो लेने पड़ते हैं। अभी मेरे केस में मेरी सिप बंद है, रेगुलर सिप बंद है, तो मुझे रिस्ट्रक्चरिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर कोई मान लो सैलरीड गाय है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था रोहित के, हमें एक 15% का पैसा ना, इन्वेस्टेबल पैसा अलग से एफडी में या आरडी में या लिक्विड फंड में पार्क करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसी इमरजेंसी आएंगी मार्केट की, तब हम वो पैसा राइट टाइम पे डाल पाए। आई होप, आई थिंक लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, या फिर 1-to-1 में कभी आपका कॉल आया तो शायद डिस्कस किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली। या सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो वी नीड टू टेक कॉल के यार मैं वो इन्वेस्टर घुसा है इसलिए घुसूं, या जो कंपनी मुझे पता है जिसके बारे में सब कुछ पता है मैं उसमें घुसूं। बहुत लोग एस जी फिनसर्व में इस टाइम पे इन्वेस्ट किए हैं, बट ये स्टॉक शायद अभी नहीं ऊपर आया है, मे बी फंडामेंटल्स थोड़े वीक हो गए इसके एज ऑफ नाउ, वैल्यूएशंस थोड़े हाई होंगे। बट ऐसे मौके पे हमें यही देखना पड़ेगा कि यार लीडर या बड़ी कंपनियां भी अच्छे वैल्यूएशन पे है क्या, नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे स्मॉल कैप कभी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई समटाइम वी नीड टू टेक कॉल कि कहाँ पे पैसा डिप्लॉय करना चाहिए। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, Yes, I या will. एनी अदर क्वेरीज गाइस टिल नाउ? ओके, सो हम बाद में फिर से क्वेरीज लेंगे। तो
ये और एक केस है, सीनियर सिटीजन हु was who was aware of stock market since 1990s. ओके, इसको सीनियर सिटीजन का नाम दो या इसको यूफोरिक इन्वेस्टर्स का नाम दो। यूफोरिक इन्वेस्टर्स यानी जो इन्वेस्टर्स जो ना मार्केट जब न्यूज़पेपर में आता है ना मार्केट ने नया हाई किया है, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, वो उसी टाइम पे पैसे डालता है। ओके, तो तो क्या होता है, एज अ लाइक फैमिली मेंबर मुझे लाइक ऐसा समझो कि यार समवन ट्रस्ट यू एंड he gave you your just example your father gave you money कि यार ये पैसा डाल दो मार्केट में, तो पापा लोग भी ना पैसा नहीं देते हैं जल्दी। वो जाएंगे सोसाइटी में नीचे, बातें चालू रहती है बुजुर्गों की। तो अभी जस्ट एग्जांपल मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि 11 महीने में, इवन दो माय पोर्टफोलियो इज नॉट इवन पॉजिटिव दिस ईयर, but I am celebrating. I have bet I beat Nifty or small cap index. Okay, I am celebrating. Still, there are no returns for this year, but there are few folks who criticize us and they celebrate their FD returns. कि यार मैंने तो 7% कमाया है, राइट? तो मोहल्ले में गलियों में यही चर्चा होती है, बड़े बुजुर्ग आते हैं। आजकल वो भी बहुत अवेयर हो गए, उनके पास भी व्हाट्सएप ग्रुप आ गया है, उनको भी पता चलता है कि यार मोदी ने ये किया है, बुरा किया है। ओके, ट्रम्प ने लगा दी है इंडिया की, राइट? तो ये चर्चा उनमें भी होती है। तो ऐसे ऐसे लाइक ये डिस्कशन में क्या होता है कि वो भी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। We can't control their emotions. Okay, so nobody is there in market since last 30 years, even though they worked with government closely. Or even I also know few employees who are in listed companies since 30 years, but they have zero investment in stock market. I met a guy an year ago, जो रिटायर्ड हुए हैं और उनका पूरा पैसा ना एफडी में लगाया हुआ है। he was in a he was in a listed company. Okay, so they feel safe over there. तो बोलना एक ही है कि लाइक ये जो यूफोरिक इन्वेस्टर्स है ना, ये मोर और लेस इन्फ्लुएंस्ड होते हैं न्यूज से। तो वो लोग ना राह देखते हैं। ओके, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग एनीवन हियर जो शायद नो, इट्स नथिंग पर्सनल। ओके, सो आई एम जस्ट, दिस इज जस्ट अ कन्वर्सेशन। ओके, तो ऐसे लोगों के पैसे भी राइट टाइम राइट जगह लगाना भी ज़रूरी है। ओके, सो अभी ये पूरा ना लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम टू डिस्कस दिस वन ऑफ दिस फैमिली पोर्टफोलियो अगेन। तो जैसे मैंने कहा कि ये पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी February 2020। देयर वाज अ पीक ऑफ निफ्टी। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पे जस्ट कोविड के पहले निफ्टी ने पीक किया था। ओके, एंड आफ्टर बजट एंड रिलेटेड अनाउंसमेंट 12,000 को टच किया था निफ्टी इस टाइम पे। देयर वाज वेरी जबरदस्त पॉजिटिवनेस। सो whoever follows Modi was in like cloud number 9. Okay, so at that point there was a first capital deployed in this portfolio, that was 10 lakh. Okay, this is just uh, personal portfolio. Okay, and like there is no other what you can say intention to show over here. So again, as this is a family portfolio, my responsibility was to deploy it properly. Then during COVID I have notified this family person कि मार्केट गिरा हुआ है अप्रैल मार्च, एंड एज वी नो वी हैव वेरी वेरी सीरियस थॉट कि सीनियर सिटीजन है ना बॉस, तो यार उनका पैसा ना बस ऐसे तिजोरी में डाल दो कि वो पैसा ना निकले ही ना, राइट? तो वो अजम्पशन में क्या होता है कि इवन दो वी हैव ह्यूज कैपिटल, वी डिप्लॉय जस्ट a small piece of like uh, money in stock market. Okay, and then even though market was down and I had notified
many times ke you can sip as I always say. Okay, and you can see here the next fund in this portfolio. Again guys, this is a real portfolio. Okay, and this is a real amount and real dates and real comparison. Okay, सो दूसरा पैसा कब आया? तो पहला पैसा आया निफ्टी जब 12,080 पे था. दूसरा पैसा कब आया? जब यूक्रेन वॉर के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे. निफ्टी मेड अ न्यू हाई ऑफ 17,000. जब निफ्टी ने ऑलरेडी 45% रिटर्न दे दिया था, उसके बाद दूसरा पैसा आया है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पैसा कब आया है? फिर देन there was positivity of UP election and the market made a new peak of 20,000, 19 to 20,000. अब ये नेक्स्ट पैसा कब आया? When market was already made 60% from the Feb 2020. Okay. Then next पैसा immediately आया, market again new high बनाया. Then June 2024 market made a new high again. एंड दिस इज माय मिस्टेक. ये एक्चुअली जैन 2025 है. ये बाय मिस्टेकनली 24 हो गया है, कॉपी पेस्ट का नतीजा. ओके, एंड हियर अगेन मार्केट मेड अ न्यू हाई. यूपी इलेक्शंस जीत, ये कब की बात है? हाँ, रिसेंटली. सो यानी पूरे जर्नी में खाली ये पैसा ना राइट टाइम आया है. ओके, एंड ये भी बहुत यूज आया था. ओके, so what I missed as an investor over here? So I had a capital, but I didn't deploy it at this point of time. I deployed at every peak of market except the last sip. Okay. So what I missed huge opportunities. So कितनी opportunity miss की है यहाँ पे? तो you can see here like 45%, 60%, 70, 90% जो second last fund आया था after इलेक्शन में जब मार्केट ने डिप किया था एंड देन फिर से रिकवरी आ गई थी 6% की उसी दिन. यानी मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 10% का उस दिन बॉटम से रैली किया था एंड इट वाज लाइक 90% रैली आफ्टर 2020. ओके, सो एज अ इन्वेस्टर द चैलेंज फॉर अस इज कि यार मार्केट 5 साल पहले का जो बॉटम था उस टाइम पे मेरे पास पैसे थे एंड आई हैव नॉट डिप्लॉयड इट. बॉस, मार्केट अभी 100% ऊपर गया है एंड लाइक इट इज लाइक अ हेल seeking for new idea. Okay, that is the main problem of the investor. That's what I had to. Okay, but I need to maintain, and as a senior citizen, if you are handling your parents money, it's very critical to keep it safe. It's very critical. Okay, and like for a euphoric investors, it's very tough to make money अगर आप मार्केट में पॉजिटिविटी देख के इन्वेस्ट करते हो तो. ओके, सो एज अ इन्वेस्टर आवर जॉब इज टू कीप द एल्डर्स मनी सेफ. आपके पेरेंट्स होंगे. ओके, सो आई विल नॉट गो टू अदर रिलेटिव्स और इन लॉ. ओके, and here you can see even these bad situations were there. Like bad situation, I mean to say it's a very challenging part to deploy my capital at every time the market is making peak and damn I am getting the money. So कसम से मेरी हवा टाइट होती है अगर ऐसा कुछ होता है तो, राइट. स्टिल इफ आई कैलकुलेट द एक्सआईआर. ओके, सो व्हाट आई डिड, यहाँ पे निफ्टी जिस दिन पैसा आया उस दिन निफ्टी का जो कुछ भी वैल्यू था, तो मैं मान लो 10 लाख के जब निफ्टी ये लेवल पे था तो मैं 82.8 यूनिट्स खरीद पाया. तो एट एवरी सिप व्हाट आई एम डूइंग इन अदर साइड कि मैंने ना ये खाली कैलकुलेशन पर्पस के लिए किया है कि अगर मैं ये पैसों से अगर निफ्टी लेता और उसका अगर मैं एक्सआरआर कैलकुलेट करता निफ्टी का, तो दैट इज लाइक 13.1%. And if we strategically manage, okay, so I was really pissed off while handling this portfolio, and it is very frustration when we don't get money when the market is at bottom.
Okay, that's why I'm telling guys why SIPs are important. Okay, still this portfolio performed 18.3%, beat it including डिविडेंड yield. तो आप ये देखो, जैसे पोर्टफोलियो 10 लाख का था, तो डिविडेंड ये तो खाली 2 महीने का ही डिविडेंड था. देन जैसे जैसे टाइम जा रहा है, अभी ये आधे साल का ही डिविडेंड है, यहाँ पे 5 महीने का ही डिविडेंड है, ये डबल हो जाएगा शायद. इस साल 38,000 के 40,000 के आसपास डिविडेंड आएगा. तो इफ आई एड दिस डिविडेंड इनटू दिस टोटल वैल्यू, सो ये टोटल वैल्यू है. अभी रिसेंटली पिक किया था, 1.25 करोड़ में ये अकाउंट गया था. वहां से 2 लाख गिरा हुआ है. अभी रिसेंटली मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया. अगर मैं डिविडेंड को इसमें ऐड करके मेरा XRR निकाल दो पोर्टफोलियो का, दैट गोज 18.3%. Why I am telling this guys, because I am looking into many groups and social media. People are hesitating to add money when the market is at bottom. Okay, so this is just I'm trying to show, even though these things are happening. Okay, I have yesterday only I have shared, this is the graph of that portfolio. Again, this is the real graph. आप ये डेट्स चेक कर लो, जहाँ पे पैसा आया है, तो जो मैंने यहाँ पे दिया है वो हिसाब से वही डेट्स में ये पैसा आया है. यू कैन सी. तो ये पोर्टफोलियो कोविड के बॉटम में 6 लाख पे गया था. ओके, आई डिडंट गॉट अ सिंगल पेनी टू इन्वेस्ट. देखो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरा 2 ढाई साल चले गया है, पैसा ही नहीं डाला गया है ये अकाउंट में. एंड जब यूक्रेन के वॉर सॉल्व हो गए, तो जैसे मैंने ऊपर दिखाया है, सितंबर के 2022 सितंबर में वो पैसा, पहला पैसा आया है. ओके, एंड यू कैन सी लाइक हाउ दिस पोर्टफोलियो ग्रोन. अब मैं कोविड का बॉटम से अगर मैं XRR निकालूंगा, इंस्टेड ऑफ व्हाट आई हैव डन इज लाइक, मैंने XRR 2020 से निकाला है. बट जैसे म्यूचुअल फंड्स आप देखोगे ना, म्यूचुअल फंड्स कहाँ से XRR दिखा रहे हैं, ये लेवल से. यानी अगर आप 5 साल का निकालोगे, तो वो सितंबर 2020 से XRR कैलकुलेट किया जाएगा. तो सितंबर 2027 से अगर मैं XRR कैलकुलेट करूंगा, तो दिस में गो about 22 to 24%. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर, कि हमने निफ्टी के पीक प्री कोविड लेवल से XRR कैलकुलेट किया है. Okay. अभी परसों एक ग्रुप में हमने जस्ट डिस्कशन किया था कि अभी मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई है रिसेंट पास्ट में, कि यार हमें 5 साल में ना हमारे म्यूचुअल फंडों ने ना ऐसा ऐसा परफॉर्म किया है. हियर आई हैव जस्ट शोन द डेटा कि देयर आर ओनली 2 म्यूचुअल फंड्स हु बीटन निफ्टी. बट इफ आई, और वो भी कैसा है, कोविड के बाद, यानी 21-22 में 2-3 स्टॉक्स की लॉटरी लग गई, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अच्छा रिटर्न दिया. बट इफ आई सी 5 साल का एक्सआईआरआर बोल रहा हूं मैं. ओके, आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखोगे, आप कैगर दिखोगे, आपको ना 1-2% ज्यादा दिखेंगे. एक्सआईआरआर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम सिप कर रहे हैं. ओके, सो इफ यू सी हियर जस्ट एग्जांपल, अभी मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, सो मे बी just abhi, you will, I don't know how many people does such analysis. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये टॉप 5%, 5 स्टार रेटिंग है. जस्ट एग्जांपल, ये इसकी और एक फ्लेक्सी कैप भी फेमस हो गया है इनका, मोतीलाल का. ओके, सो यहाँ पे ठीक है यार, मुझे 3 साल का दिख रहा है कि यार इतना एनुअलाइज रिटर्न इतना बनाया है. ओके, अगेन दीज आर, आई डोंट नो लाइक, अगेन मुझे आपके पोर्टफोलियो में भी नहीं पता आपने कब कब सिप किया है. बट इफ आई कैलकुलेट 5 साल का XRR इनका, ओके, सो XRR दिख रहा है क्या? ओके, नहीं, मैंने फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे वो कैलकुलेशन किया था. तो एब्सोल्यूट बेसिस पे इनके रिटर्न्स खाली 5 साल से अगर आप इतना सिप करते हो तो 75% है. बट आप XRR निकालते हो तो दैट गोज टू, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू. आप कोई भी कैलकुलेटर यूज कर लो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, और उसमें XRR कैलकुलेट करने का कोशिश करो, तो वो लगभग 17 to 18% के रिटर्न आते हैं. ओके, आई एम टॉकिंग सिंस, आई एम टॉकिंग दिस रिटर्न सिंस 5 years, यानी ये बॉटम है. ओके, अगर आप इसको फेब से कैलकुलेट करोगे, ये फंड्स के रिटर्न, आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ और देखो फंड्स यहाँ से कैलकुलेट करो, आपको शायद थोड़ा पिक्चर
और क्लियर हो जाएगा. ओके. सो या सो स्टिल इफ आई कंसिडर, जैसे मैंने कहा कि इवन इफ दिस यूफोरिक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का भी अपन देखेंगे, तो दिस आल्सो कंफर्टेबली बीटन दिस म्यूचुअल फंड्स. ओके. अगेन दिस इज नॉट अ कंपैरिजन. माय एक्सपेक्टेशन इज दे यार 12 से 14% के रिटर्न आ जाए अगले डिकेड में, कैगर मैनर में या एक्सआरआर मैनर में, तो भी बहुत है. एक और एक था कि लास्ट, मान लो अगर किसी ने वीडियो देखा होगा. ओके. अभी जब ये वीडियो हमने ना लास्ट वेबिनार जो है ना 5 सितंबर पे कंडक्ट किया था. ओके. सो मैंने मेरे वाइफ का पोर्टफोलियो दिखाया था उसमें. अगेन दैट इज अ रियल पोर्टफोलियो. तो उसमें यू कैन सी, मैं थोड़ा सा पहले 10 साल का ही दिखाता हूँ कि 5 सितंबर को ये पोर्टफोलियो वर्थ जो थी वो 1.63 CR थी. ओके. एंड 2 दिन और आफ्टर 10 ईयर्स के रिटर्न अगर डिविडेंड हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, जस्ट एग्जांपल, तो हमने यही बताया था कि ये पोर्टफोलियो की वैल्यू 20% कैगर से अगर हम जाते हैं अगले 10 साल में, तो ये 10.1 CR हो जाएगी. ओके. अभी ये 10 दिन में क्या हो गया ये पोर्टफोलियो में, ये 1.63 जो थे इन्वेस्टेड वैल्यू, थोड़ा सा ना ये पोर्टफोलियो बढ़ गया है. कितना बढ़ा है ये पोर्टफोलियो? समथिंग अराउंड 9 दिन में. थोड़ा गिरा भी है, एक लास्ट 1-2 सेशन में शायद गिरा होगा थोड़ा, बट एक मैं 14 सितंबर की वैल्यू यानी लास्ट फ्राइडे यानी 13 की वैल्यू अगर निकालता हूँ 12 की, तो ये पोर्टफोलियो ये 9 दिन में खाली 4 लाख बढ़ा है. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.25% और समथिंग लाइक दैट. बट आप देखोगे ये 2 या 3 लाख बढ़ने की वजह से, प्रीवियसली क्या था 1.63 से ये पोर्टफोलियो की वैल्यू अगले 10 साल में, लाइक दीज आर जस्ट अजम्पशन. ओके. 10.1 CR हो जाएगी, 10.1 CR हो जाएगी. बट ये 2 लाख, ये 3 लाख, साढ़े तीन, ये 4 लाख बढ़ने की वजह से हमारा कंपाउंडिंग भी बढ़ गया है यहाँ पे. तो जो हमारा जो पोर्टफोलियो था वो 25 लाख ज्यादा रिटर्न देगा, खाली ये 9 दिन के रिटर्न्स बढ़ने की वजह से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जब जब पोर्टफोलियो आपका थोड़े एक्स्ट्रा रिटर्न देगा ना, आपका जो टारगेट है फ्यूचर का, दैट इज द टर्मिनल वैल्यू और वट एवर गोल यू कैन से, दैट विल रीच लिटिल बिट क्विकली. सो जैसे ये केस में तो लगभग आई थिंक 35 लाख का डिफरेंस आ जाता है. ओके. तो 30 साल के होरिजोन के लिए मैं जाऊंगा नहीं. 30 साल के होरिजोन पे जाओगे ना तो 30-40 करोड़ बढ़ गए हैं एक्चुअली. जस्ट एग्जांपल, अभी 5 तारीख को पोर्टफोलियो वैल्यू इतनी थी 1.63 करोड़, एंड खाली 9 दिन में जो 4 लाख बढ़ा है, तो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू जो मुझे दिख रही है लाइक आफ्टर 30 ईयर्स. ओके. 30 ईयर्स बोलने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा लगेंगे, बट लेट्स सी वो कब आएगा. बट यहाँ पे ये जो 337 करोड़ जो हुए थे, खाली ये 4 लाख बढ़ने के कारण क्या हुआ है, ये 337 करोड़ जो है उसमें 10 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बढ़ गए खाली ये 10 दिन के. यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लॉन्गर होरिजोन में वो डेल्टा बहुत ज्यादा नजर आएगा, बिकॉज कंपाउंडिंग विल हैपन ऑन दिस इंक्रीज्ड वैल्यू, राइट? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मार्केट विल सरप्राइज अस इन फ्यूचर. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर. ओके. दैट्स इट गाइस. सो आई थिंक सेशन का जो एजेंडा था वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, बट एनीवे लाइक वी आर ओके टू टेक द क्वेरीज.